Okay, so today we are going to revise chapter number 13, magnetic effect of electric current, right? So you know that this chapter is coming in half yearly and the topics, आपको सबको topics पता है, magnetic field से शुरुआत करते हैं that we are going to revise magnetic field first. What do you understand by the term magnetic field? Anyone? What do you understand by the term magnetic field? The region surrounded by the magnet on where we can feel the effect of magnet. Very good. The space around a magnet, around which you can experience the strength or you can experience the force of it, is simply the magnetic field, the space around a magnet. Force of it can be experienced. ठीक है? उसके बाद ये तो मैग्नेटिक फील्ड की बात होगी. आपने मैग्नेट पढ़ लिया. आपने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी, राइट? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. आपको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस से बताते हैं. एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड the properties of magnetic field lines. Properties of magnetic field lines. Now this is important. This is important for exam. You have to understand the properties of magnetic field lines. So सबसे important properties आपको अगर याद हो, मैंने आपको 4 to 5 properties दिखाई थी. The first property which is very important और सिंपल, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में? वो कहां से ओरिजिनेट होती है, कहां पे एंड होती है? द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच पोल? North pole to south pole. Exactly, they originates from north pole and ends at south pole of the magnet. And to understand this, we can simply take a bar magnet. आप एक simple bar magnet को ले सकते हो जिसमें you have north and south pole. You can see that the magnetic field lines here originates from the north pole and goes towards the south pole. Or inside the same magnet, the field lines actually travel from south to north. Yeah. Now, the next property, which is the most important property है और ये पूछा जाता है. आपको reason and assertion जो questions आते हैं उसमें क्वेश्चन बहुत बार आता है. These are closed curves. These are closed continuous curves. Is it true or false? The magnet. Yes. ये चीज हमेशा याद रखना. These are closed continuous curves. Magnetic field lines are always closed. They are not, broke at any point. They are continuous. इसका मतलब आपको अगर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी मैग्नेट के चारों तरफ है तो आपको हर पॉइंट पर एक स्ट्रेंथ मिलेगी. ठीक है? आप चाहे एक स्मॉल माइन्यूट भी डिफरेंस ले दो पॉइंट्स के बीच में, सो यू गेट दैट दे आर कॉन्टिन्यूअस. कोई ब्रेक नहीं है, कोई पॉइंट पे ऐसा नहीं है कि होल्स और ऐसा कुछ हो. इन लाइन्स में ऐसा कुछ भी नहीं है. दे आर क्लोज एंड दे आर कॉन्टिन्यूअस. उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है strength. एक क्वेश्चन आता है strength of the magnetic field lines is near poles more than when we take a lateral distance. सबसे ज्यादा strength poles पे क्यों होती है? Because there is a very crowded lines of magnet. Exactly, they are crowded. They
they are crowded near poles. They are crowded near poles of the magnet where the field is strong and separated far from the poles where the magnetic field is weak. So ये crowded होते हैं near poles of the magnet where the strength. ये सारे क्वेश्चंस रीजनिंग के फॉर्म में आएंगे, ठीक है. एमसीक्यूज में, रीजंस में यू गेट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस. दे आर क्राउडेड नियर पोल्स ऑफ द मैग्नेट वेयर द स्ट्रेंथ इज स्ट्रॉन्ग. सिमिलरली जैसे ही आप फार अवे फ्रॉम द पोल्स जाओगे द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस. क्लियर. और इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन जो हमेशा बनता है इससे, कौन सी प्रॉपर्टी होगी? The most important property of field lines, magnetic field lines की सबसे ज्यादा important property कौन सी होती है? Two magnetic field lines never intersect each other. Two magnetic field lines or two or more magnetic field lines never intersect each other. ऐसा क्यों? I have explained the answer. जब मैंने पढ़ाया था तब मैंने आपको ये चीज समझाई थी बहुत अच्छे से, that two magnetic field lines never intersect each other. और ऐसा क्यों होता है? Who will tell me? अच्छा, वेरी गुड. एनीवन एल्स? बहुत सही बेटा, आपका आंसर करेक्ट है. बस मुझे एक चीज और समझनी है, वो ये, आप सभी को हमने बताया था कि दैट मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी. क्लियर. मैग्नेटिक फील्ड विच कैन बी डिनोटेड बाय कैपिटल M और कैपिटल B और कैपिटल H. 3 अल्फाबेट से इसको शो कर सकते हैं, बट हम लोग लोअर सेक्शन में इसको कैपिटल B से ही शो करते हैं. इज अ वेक्टर क्वांटिटी which means it have both magnitude as well as direction. Now if two magnetic field line, अब आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है जो आपने बताया बिल्कुल. इसके बाद आप इसको ऐड करोगे that if two magnetic field lines intersect with each other and if we place a compass needle over it, it will not deflect in any direction, because अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन होंगे और which is impossible. अगर दो मैग्नेटिक फील्ड इंटरसेक्ट करेंगी तो एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन तो हो नहीं सकते मैग्नेटिक फील्ड के, बिकॉज इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. इट कैन ओनली हैव वन डायरेक्शन एंड अ सिंगल मैग्नीट्यूड. ठीक है, समझ में आया? तो कंपास नीडल डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगी. कंपास नीडल क्या हो जाएगा, वो आपको डायरेक्शन दिखाई नहीं पाएगी. तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है. इसीलिए दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं दूसरे को. एम आई क्लियर? उसके बाद आपने मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, मैग्नेट्स के बारे में समझ लिया, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पढ़ लिए. इसके बाद हम लोग को पढ़ना था मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे चैप्टर का ही नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. नाउ वी हैव टू सी द मैग्नेटिज्म which can be produced by a electric conductor. क्लियर. मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. अगर आपको याद हो तो आई हैव टोल्ड यू अबाउट वन एक्सपेरिमेंट. एक एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने आपको बताया ना. रिमेंबर वन साइंटिस्ट नेम, कुछ याद आ रहा है? हैव यू ऑल रिवाइज्ड? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट कुछ याद है? Can anybody explain me ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था? ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट याद ही है आप लोगों को? बेटा ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट रिमेंबर
रिमेम्बर टेबल पे एक दिन साइंटिस्ट ऑस्टेड एक इलेक्ट्रिक सर्किट पे वर्क कर रहे थे एंड देयर वाज अ कंपास नीडल ऑन हिज टेबल. So he saw that when the circuit is switched on, जैसे सर्किट स्विच ऑन होता था तो ये जो इलेक्ट्रिक कंपास है वो क्या होता है, इसके पास आने लग जाता है और इट शो सम डिफ्लेक्शन इन द कंपास नीडल में कुछ डिफ्लेक्शन दिखना शुरू हो जाता है. एंड फ्रॉम हियर ओनली वी कंक्लूड दैट द इलेक्ट्रिक करंट ऑल्सो हैव सम मैग्नेटिक इफेक्ट. क्लियर? समझ में आया? The electric current is also having some magnetic effect in it and it is given by Oersted experiment. उसके बाद हम पढ़ते हैं magnetic effect by a straight conductor, magnetic field due to a current carrying conductor. Next topic जो भी important है, magnetic field due to a current through a straight conductor. ओके, अब कुछ याद आ रहा है? स्ट्रेट कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती थी? कॉन्सेंट्रिक सर्कल. वेरी गुड. चलो एक चीज का आंसर याद आ रहा है. So you can see that if the current is flowing in a straight conductor, the direction of magnetic field are in form of concentric circle. Further, the magnitude of the magnetic field produced by a straight conductor is directly proportional to what? ये magnetic field किसके directly proportional होती थी? बताओ बेटा. नहीं, करंट के. द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट. अगर करंट इंक्रीज करनी जाएगी तो स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज आल्सो स्टार्ट इंक्रीजिंग. व्हाइल इफ यू टेक द डिस्टेंस अवे फ्रॉम आप जितना दूर में जाओगे इस वायर से उतना ही ज्यादा इसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज होती जाएगी. इफ यू आर टेकिंग सम आर्बिट्रेरी डिस्टेंसेस r1 r2 and r3, at which point the magnetic strength will be minimum. किस पॉइंट यहाँ पे मिनिमम होगी? r1 पे, r2 पे या r3 पे? At which point you get the minimum magnetic field? r3. Exactly. And maximum? r1. Now can you tell me the direction of the magnetic field? कि ये जो direction of the magnetic field किस direction में होगा? How you calculate it? Which law? Maxwell's right hand thumb rule. Very good. So you can calculate the magnetic field through a straight conductor by using Maxwell right hand thumb rule. जिससे आप क्या कर सकते हो? करंट का आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकाल सकते हो इफ यू नो द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग इनटू द वायर. और उसका स्ट्रेंथ आपको याद रखना है अगर करंट इंक्रीज होगी. बिकॉज सी दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन बी इन एमसीक्यूज. एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट. मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम द वायर. तो आपको याद रखना है कॉन्सेप्ट एंड फ्रॉम दैट ओनली यू कैन क्लियर द एमसीक्यूज और द रीजन असर्शन क्वेश्चंस. क्लियर? ये वाला जो चैप्टर है ये आपको कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे बेस्ड है. इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे. इसमें आपको आएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए. ठीक है? तो इसके बाद आपने जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था वो था मैक्सवेल राइट हैंड. देखो इसमें क्वेश्चन आएगा राइट हैंड थंब रूल पे भी क्वेश्चन आएगा और फ्लेमिंग्स आपका तो फ्लेमिंग्स वो लेफ्ट हैंड रूल हो. इसी में आप लोग कंफ्यूज करोगे कि कौन सा रूल किस पे यूज होता है. मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. इनमें डिफरेंस क्या है?
एनीबडी नोस? आप कौन सा कहाँ यूज करते हो इसको याद रखोगे ना तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है? सो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? आप किस लिए यूज करते हो? To detect the direction Of what? To detect the direction of? वेरी गुड, ये चीज याद रखना। एम, मैक्सवेल का एम डिटरमाइंस द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। सो टू डिटेक्ट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यू यूज दिस। इस रूल में क्या होता है तो बताएगा मुझे फटाफट से। You can use which hand of yours? Right hand. Right hand thumb means the direction of the thumb represent the direction of current in the wire. While the fingers, the curling of the fingers will give you the direction of the magnetic field. Clear? आप लोगों को अगर याद हो तो हम लोग क्या करते थे, हमें जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम हैविंग दिस वायर, इसमें करंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसमें करंट डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, आपको हो सकता है पिक्चर फॉर्म में वहां पे सारे डायग्राम्स बने हो एंड यू हैव टू डिटेक्ट विच वन इज करेक्ट। सो जस्ट टेल मी किसमें क्लॉकवाइज और किसमें एंटी क्लॉकवाइज? यूज योर राइट थंब टू डिटरमाइन द आंसर। या फर्स्ट वाले में एंटी क्लॉक, करेक्ट, बिकॉज सेकेंड वाले में क्लॉकवाइज। सेकेंड वाले में क्लॉकवाइज। गुड, अच्छा ये तो सही है आप लोगों का। अब एक और बता दो फटाफट से। नाउ द करंट इज फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन। नाउ अब बताओ ये जो लाइंस बनेगी वो सेम प्लेन में होंगी फर्स्ट थिंग, और सेकेंड थिंग अगर दूसरे प्लेन में होंगी तो डायरेक्शन कैसा होगा? फील्ड कुछ इस तरह से आएगी एंड यू विल सी द कर्लिंग ऑफ द फिंगर व्हिच कम्स आउट टू बी एंटी क्लॉकवाइज, करेक्ट, ठीक है? तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक पढ़ा था, वो था मैग्नेटिक फील्ड एंड द करंट इज फ्लोइंग थ्रू अ सर्कुलर लूप। अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं? सर्कुलर लूप में। Now you are having a circular loop. अब इसका आपको याद है इसमें कैसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी? If you apply some, you know, a battery or some potential difference across a wire or across a loop, then the magnetic field lines around this wire or this loop will be कैसी थी बेटा? यहाँ पे कैसे थे? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स फॉर्म हो रहे थे एंड जैसे जैसे आप बीच में आते हो तो आपको ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन मिलती है और यहाँ पर भी आपको ऐसे कॉन्सेंट्रिक सर्कल मिलते हैं। सो दीज आर एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल, और आप जब इसकी डायरेक्शन निकालोगे तो ऊपर वाले में कैसे मिलेंगे? गुड, एंटी क्लॉकवाइज एंड हियर क्लॉकवाइज। और यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती थी? हियर द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स ऑन करंट पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी करंट पे। इफ द करंट इन द लूप डिक्रीजेस, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो डिक्रीजेस नियर द लूप। फर्दर यहाँ पे हमें एक और चीज पता चलती है कि इफ द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ दिस लूप इज इंक्रीज्ड, क्योंकि इसके बाद ही सर्कुलर लूप से आप नेक्स्ट चीज बनाने जाओगे, दैट थिंग इज सोलेनॉइड। सो सर्कुलर लूप आपको क्या पता चलता है? द नंबर ऑफ टर्न्स इंक्रीजेस, द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आल्सो increases. Similarly, the number of turns decreases, the strength of magnetic field also decreases. So after this, you are going to study the most important topic, and the topic is what? Magnetic field due to a current carrying solenoid. समझ में आया? यहाँ तक तो आपने स्मॉल टॉपिक्स पढ़ लिया, जो मेन टॉपिक है वो यहाँ आता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू
to a current in a solenoid. Due to a current in a solenoid. What is a solenoid? सबसे पहले क्वेश्चन तो ये बता दो, व्हाट इज अ सोलेनॉइड? नहीं, आपने एनसीईआरटी पढ़ा है, एनसीईआरटी खोला, अगर आपको याद हो तो वहां पे टर्म दिया है सोलेनॉइड के बारे में. व्हाट इज सोलेनॉइड? मैंने आपको लिखाया है, पढ़ाया है, समझाया है. कितनी बार समझाया है? ऐसा कुछ दिखता है अगर आपको याद हो? ये क्या होता था? Non-coil consisting of a large number of circular turns of insulated copper wire. Exactly right. So a solenoid is defined as a coil consisting of a large number of circular turns of insulated copper wire. Clear? And these turns are actually wrapped closely to form like a cylinder. अगर इन सारे टर्न्स को आपने कॉपर वायर लिया, उसको सर्कुलर लूप्स के फॉर्म में आपने नंबर ऑफ टर्न्स बना दिए, एंड दीज टर्न्स आर एक्चुअली इंसुलेटेड. आपस में नहीं, दे विल नॉट इंटरैक्ट विद ईच अदर. ऐसा ना हो, इसलिए क्या होगा, इनमें आप इन सबको इंसुलेट करके दे हैव मेक्स नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ इट एंड दे आर रैप्ड लाइक अ सिलेंडर. अगर आप इस पूरे कॉइल को फिट करो तो फिट्स इनटू अ सिलेंडर काइंड ऑफ अ थिंग. ठीक है, तो इस तरह की डिवाइस क्या होती है? सोलेनॉइड होती है. नाउ व्हेन यू कनेक्ट दिस सोलेनॉइड विद इन अ इलेक्ट्रिक सर्किट, तब हम लोग क्या देखते हैं बेटा? व्हेन वी सी दैट यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाती है? मैग्नेटिक फील्ड. यू सी दैट देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड व्हिच फॉर्म्स अराउंड अ सोलेनॉइड. नाउ यू सी यहाँ पे एक नॉर्थ पोल बन जाता है एंड एक साउथ पोल बन जाता है, और आउटसाइड अ सोलेनॉइड द लाइंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आर फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल. और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमको क्या पढ़ना है? इनसाइड क्या सोलेनॉइड कैसी होती है? मैग्नेटिक लाइंस पैरेलल टू ईच अदर एंड यूनिफॉर्म, साउथ टू नॉर्थ, एंड दे आर uniform. The most important thing is that the strength of magnetic field is same. Strength of magnetic field is same or uniform. This is the most important point. Uniform inside a solenoid. ठीक है, एंड यही प्रॉपर्टी आप सोलेनॉइड की यूज करते हो किसके लिए? You use this property of solenoid to make a gadget or a device which is known as electromagnets. आप electromagnets जो बनाते हो वो कैसे बनाते हो? You use this solenoid, you place a soft iron core inside the wires or turns of the solenoid and you magnetize that soft iron rod into a magnet. और वही मैग्नेट्स टेम्परेरी मैग्नेट्स होते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बोलते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स how electromagnets are formed? When you place the soft iron core inside a solenoid or circular turns and you switch on the circuit, the soft iron core got magnetized up to the time when the current is flowing in the circuit. जैसे ही करंट फ्लो नहीं करेगी वैसे ही ये वापस से सॉफ्ट आयरन कोर बन जाएगा. ठीक है, तो these devices are formed which are known as electromagnets. ठीक है बेटा?